डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर संगीता चौधरी और आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट एक्रोमेगाली। सो लेट्स सी एक्रोमेगाली क्या है। एक्रोमेगाली जो है ये एक डिसऑर्डर है जो कि बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन की वजह से होता है। ठीक, एक्रोमेगाली इज अ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी. There is something known as gigantism also. So what is acromegaly and what is gigantism? If the hypersecretion of growth hormone before epiphyseal plate fusion से होता है, it results in gigantism. Means अगर childhood में growth hormone release increase होता है before the epiphyseal plate fused होता है, that will result in gigantism. एंड अगर ये एपिफाइशियल प्लेट फ्यूजन होने के बाद होता है, मीन्स ग्रोथ हार्मोन जो एक्सेस होता है बॉडी में, इफ इट इज आफ्टर द एपिफाइशियल प्लेट फ्यूजन एडल्ट में होता है, देन इट कॉजेज एक्रोमेगाली. जाइगेंटिज्म में देयर इज अ ग्रोथ इन हाइट बहुत ज़्यादा होता है, वेयर एज एक्रोमेगाली कॉजेज वंस फीचर्स एंड एक्सट्रीमिटीज टू ग्रो लार्जर एंड वाइडर. ओके, जाइगेंटिज्म में ग्रोथ इन हाइट रहेगा, हाइट बहुत ज़्यादा रहेगा, बट एक्रोमेगाली में एवरीथिंग विल बी लाइक लार्जर एंड वाइडर, एक्सट्रीमिटीज विल बी लार्जर एंड वाइडर. नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन जो है इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बॉडी सच एज ऑन मसल ग्रोथ. It also acts on specialized gland cells in the liver, resulting in release of insulin-like growth factor, also known as IGF-1 or somatomedin C. IGF-1 जो है, that mainly affects growth of bone and cartilage. That means growth hormone has direct activity, direct function, and it acts also via insulin-like growth factor 1. Okay, so directly जब काम करता है growth hormone, it directly acts on muscle growth. Okay, directly acts on muscle. Indirectly जब काम करता है via insulin-like growth factor 1 और somatomedin C, it results in growth of bone and cartilage. ये हो गया function of growth hormone, what growth hormone does and via whom. अगर हम causes describe करें of acromegaly, okay, then we can see that 98% of cause is due to from the pituitary region. Okay. Densely or sparsely granulated growth hormone cell adenoma, 60% of cases this is the responsible cause. Mixed growth hormone cell and prolactin cell adenoma, 25% of cases. Mammosomatotroph cell adenoma, 10% of cases. Plurihormonal adenoma, pluri means multiple, so multiple hormonal सेल अगर इन्वॉल्व होता है एडेनोमा में तो प्लूरी हार्मोनल एडेनोमा. ग्रोथ हार्मोन सेल कार्सिनोमा और मेटास्टेसिस. मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया टाइप 1, ओके, उसमें भी ग्रोथ हार्मोन सेल एडेनोमा होता है. मैक्यून ऑलब्राइट सिंड्रोम. एक्टोपिक स्फिनॉइड और पैराफेरेंजियल साइनस पिट्यूटरी एडेनोमा. Extra pituitary tumor, less than 1% of cases. Pancreatic islet cell tumor, lymphoma. Excess growth hormone releasing hormone secretion. Okay, these are the main important causes of growth hormone excess in the body. Peripheral cause जो है उसमें bronchial carcinoid, pancreatic islet cell tumor, small lung cell cancer, adrenal adenoma, medullary thyroid carcinoma and pheochromocytoma.
ये भी they also may be associated with excess growth hormone production because of excess growth hormone releasing hormone secretion. Okay, इसका prevalence बहुत कम है, it is only less than 1%. क्लिनिकल फीचर्स, अगर क्लिनिकल फीचर्स में हम देखें तो द प्रोटीन मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 हाइपर सिक्रीशन आर इंडोलेंट एंड ऑफन क्लिनिकली डायग्नोसिस नहीं होता है फॉर 10 years और मोर. पेशेंट में बोनी ओवरग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1. बोनी ओवरग्रोथ की वजह से फ्रंटल बॉसिंग रहेगा पेशेंट में. हैंड एंड फुट साइज विल बी इंक्रीज्ड. मैंडिबुलर एनलार्जमेंट विद प्रोग्नेथिज्म. वाइडन स्पेस बिटवीन लोअर इंसाइजर टीथ. So these are the important acral bony overgrowth feature in case of growth hormone excess. Soft tissue swelling रहता है. Soft tissue swelling की वजह से क्या होता है? There may be increased in heel pad thickness, increased shoe और glove size. Ring जो है ring tight हो सकता है because of soft tissue swelling. Characteristic coarse facial feature रहेगा patient में. Nose will be large and fleshy. So this is one of the example. Okay, this patient, they are twins and this patient has growth hormone excess. Okay, यहाँ पे अगर हम देखते हैं if we compare the normal person with the growth hormone excess, we can see that there is enlargement of the hand and enlargement of the feet comparing to a नॉर्मल पर्सन. ओके, यहाँ पे पेशेंट का हाइट इज मच हायर देन अ नॉर्मल पर्सन ऑफ हिज एज. बाकी फीचर्स में, क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या हो सकता है? देयर मे बी हाइपर हाइड्रोसिस मीन्स इंक्रीज्ड स्वेटिंग, डीप एंड हॉलो साउंडिंग वॉइस. स्किन ऑयली हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन. आर्थ्रोपैथी हो सकता है. Kyphosis, excessive forward bending in the spinal cord. Carpal tunnel syndrome हो सकता है because of entrapment. Proximal muscle weakness and fatigue. Acanthosis nigricans. Acanthosis nigricans are kind of skin lesion जो nape of the neck में होता है. Hyperpigmented granular skin lesion होता है. Skin tag. Skin tag are also important finding in case of acromegaly. Patient में generalized visceromegaly होता है. Visceromegaly means enlargement of the visceras. Okay, generalized visceromegaly including cardiomegaly हो सकता है. Macroglossia means tongue enlarged होता है, बड़ा होता है tongue, and thyroid gland enlargement. So these are the common visceromegaly in case of acromegaly. जो most significant clinical impact of growth hormone excess है, it occurs to the like in respect to the cardiovascular system होता है. क्या क्या problem होता है cardiovascular system में? It causes cardiomyopathy with arrhythmia, left ventricular hypertrophy हो सकता है, decreased diastolic function and hypertension. ये जो है ये सब बहुत important findings है और important associations है with growth hormone excess. upper airway में obstruction हो सकता है. क्यों होगा? because of जो laryngeal soft tissue है उसका swelling होगा, enlargement होगा, soft tissue का swelling होके airway सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होके इन द लेरिंजियल सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग होगा तो वहां पे लेरिंजियल सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग होगा जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करेगा एंड स्लीप एपनिया भी होगा पेशेंट में. ओके,
डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है इन 25% ऑफ पेशेंट ऑफ एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जो है इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलोनिक पॉलिप्स एंड कोलोन कार्सिनोमा। अनलेस ग्रोथ हार्मोन लेवल्स आर कंट्रोल, पेशेंट का सर्वाइवल बाय 10 years, एवरेज 10 years रिड्यूस्ड हो जाता है। ओके, सो वी रियली नीड टू आइडेंटिफाई दोज पेशेंट, डायग्नोस करके ट्रीट करना है। इन्वेस्टिगेशन, अगर हम इन्वेस्टिगेशन में देखें तो what are the tests we are going to do? Age matched serum IGF-1 level, insulin like growth factor 1 level जो increase रहता है in acromegaly। growth hormone जो है उसका single random measurement is not helpful because growth hormone secretion pulsatile manner में होता है। So owing to the pulsatility of growth hormone secretion, measurement of a single random growth hormone level is not useful। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे? तो डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए पेशेंट में देयर शुड बी अ फेलियर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टू बिलो 0.4 माइक्रोग्राम पर लीटर within 1 to 2 hours of an oral glucose load, that is 75 ग्राम ग्लूकोज लोड करेंगे ओरली। आफ्टर 1 to 2 आवर अगर पेशेंट का ग्रोथ हार्मोन सप्रेस नहीं होता है बिलो 0.4 माइक्रोग्राम पर लीटर, देन दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। प्रोलैक्टिन भी मेजर करना है, PRL फॉर प्रोलैक्टिन मेजर करना है बिकॉज प्रोलैक्टिन 25% ऑफ पेशेंट ऑफ एक्रोमेगाली में एलिवेटेड रहता है। अदर देन दिस थायराइड फंक्शन मेजर करना है, गोनाडोट्रोफिन लेवल देखना है एंड सेक्स स्टेरॉइड लेवल भी देखना है। दे मे बी रिड्यूस्ड, क्यों रिड्यूस होगा? बिकॉज ऑफ अ मास इफेक्ट इन द पिट्यूटरी ड्यू टू एडेनोमास। यू हैव सीन दैट एडेनोमास आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। तो अगर मास होगा तो अगर ट्यूमर होगा तो उसका मास इफेक्ट के वजह से अदर हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। इमेजिंग स्टडी करेंगे टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग ट्यूमर, मीन्स ब्रेन का MRI करेंगे हम। MRI में वी विल बी एबल टू सी कि ट्यूमर कहाँ है, ट्यूमर का साइज वगैरह क्या है, वेदर देयर इज एनी मास इफेक्ट और नॉट। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो व्हाट आर द गोल्स ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑफ एक्रोमेगाली? Goal of treatment is definitely to control growth hormone and insulin like growth hormone 1 hypersecretion, tumor growth arrest करना है, comorbidity reduce करना है, mortality rates reduce करना है and pituitary function preserve करना है। So these are the goals जो हमको ध्यान में रखना है when we start treating a patient with growth hormone excess or acromegaly। सर्जरी, सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ एडेनोमा जो है दैट इज द फर्स्ट चॉइस इनिशियल ट्रीटमेंट इन मोस्ट पेशेंट। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडेनोमा को सर्जिकली रिमूव करना है वाया ट्रांसफिनॉइडल अप्रोच। ये जो है ये कॉमनेस्ट अप्रोच है एंड इट इज काइंड ऑफ सेफ। ट्रांसफिनॉइडल सर्जिकल रिसेक्शन करना है of growth hormone secreting pituitary adenoma। Soft tissue swelling जो है वो improves immediately after tumor resection। growth hormone level normal level में return करता है within 1 hour and insulin like growth factor level normal होता है by 3 to 4 days। Okay, so tumor remove किया, देन जो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन 1 घंटे में नॉर्मल लेवल में आ जाएगा एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो 3 से 4 दिन में नॉर्मल लेवल में रिटर्न करेगा। बट जो सर्जरी होता है पोस्ट सर्जरी ऑलमोस्ट 15% ऑफ द पेशेंट दे डेवलप हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो ये हमको बहुत ध्यान में रखना है कि पेशेंट शुड नॉट डेवलप हाइपोपिट्यूटरिज्म। फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी में हम सोमाटोस्टैटिन एनालॉग यूज करते हैं। सोमाटोस्टैटिन एनालॉग जो है दे विल प्रिवेंट द
excess release of secretion of growth hormone. Somatostatin analog as an adjuvant treatment यूज करेंगे in the perioperative phase. Preoperative shrinkage of the tumor के लिए हम यूज करते हैं. सोमाटोस्टैटिन एनालॉग यूज करेंगे तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज डिक्रीज होगा एंड जो एडेनोमा है उसका साइज भी श्रिंक हो जाएगा. देन इट विल बी इजी टू परफॉर्म द सर्जरी. इसीलिए प्री ऑपरेटिवली यूज करेंगे. इमीडिएट रिलीफ ऑफ डेबिलिटेटिंग सिम्टम्स होता है विथ यूज ऑफ सोमाटोस्टैटिन एनालॉग. ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन रिड्यूस होता है और ये प्राइमरी थेरेपी यूज कर एज ए प्राइमरी थेरेपी हम यूज कर सकते हैं इन पेशेंट्स जो कि सर्जरी डिक्लाइन करते हैं, जो सर्जरी नहीं करना चाहते एंड जिनका सर्जरी फेल होता है. इन दोज ग्रुप ऑफ पेशेंट इट इज द इनिशियल और प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. सो सोमाटोस्टैटिन एनालॉग लाइक ऑक्ट्रियोटाइड सबक्यूटेनियसली हम दे सकते हैं. इनिशियल डोज 50 माइक्रोग्राम 3 टाइम्स डेली देना है एंड डोज ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 1500 माइक्रोग्राम पर डे. मीन्स 150 माइक्रोग्राम पर डे से शुरू करेंगे, देन ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 1500 माइक्रोग्राम पर डे. ऑक्ट्रियोटाइड जो है इट विल सप्रेस इंटीग्रेटेड ग्रोथ हार्मोन लेवल and it will also normalize insulin-like growth factor 1 level in 60% of the treated patient. Long-acting somatostatin depot formulation, for example, lenriotide हम use कर सकते हैं, that is long-acting. Adverse effects जो है they are short-lived and they are mostly related to drug-induced suppression of gastrointestinal motility and secretion. So इतना serious side effects तो नहीं होता है. So these are the some side effects. Other than somatostatin analog, pharmacotherapy में हम growth hormone receptor antagonist भी यूज कर सकते हैं. Growth hormone receptor antagonist like Pegvisomant. ये will reduce the serum insulin-like growth hormone growth factor 1 level. कैसे देना है Pegvisomant? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है 10 to 20 मिलीग्राम डेली और IGF-1 को ऑलमोस्ट 70% ऑफ पेशेंट में ये नॉर्मलाइज कर देता है. ग्रोथ हार्मोन लेवल जो है दैट हाउएवर रिमेन्स एलिवेटेड. क्यों? बिकॉज ये ड्रग जो है इट डज नॉट टारगेट द पिट्यूटरी एडेनोमा. ये ट्यूमर को टारगेट नहीं करता है, पिट्यूटरी को टारगेट नहीं करता है. इट प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाय एक्टिंग एज एन एंटागोनिस्ट टू ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर. इसीलिए ग्रोथ हार्मोन लेवल ज़्यादा रहेगा बट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लेवल सप्रेस हो जाएगा. क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है? साइड इफेक्ट्स में रिवर्सिबल लिवर एंजाइम एलिवेशन होता है. मीन्स ड्रग स्टॉप करेंगे तो एंजाइम वापस नॉर्मल लेवल में आ जाएगा. लाइपोडिस्ट्रॉफी एंड इंजेक्शन साइट पेन, दीज आर द अदर कॉम्प्लिकेशंस. डोपामिन एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं. ओके, सो डोपामिन एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन यूज कर सकते हैं जो मॉडेस्टली सप्रेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन. लेकिन ब्रोमोक्रिप्टिन का बहुत हाई डोज चाहिए टू सप्रेस ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन. इट इज लाइक 20 और मोर देन 20 मिलीग्राम पर डे. इट इज अ वेरी हाई डोज. कैबरगोलिन 0.5 मिलीग्राम पर डे यूज कर सकते हैं. ओके, दीज आर द डोपामिन एगोनिस्ट. सो other than growth hormone receptor antagonist, dopamine agonist भी यूज कर सकते हैं. Lastly, radiation. External radiation therapy और high energy stereotactic techniques यूज कर सकते हैं but they are used not as a primary therapy but adjuvant therapy के हिसाब से यूज कर सकते हैं. पेशेंट जो है उनको लॉन्ग टर्म मेडिकल थेरेपी का ज़रूरत हो सकता है for several years before attaining maximal radiation.
मोस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डैमेज. अगर रेडिएशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ देम विल डेवलप हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी डैमेज. लास्टली अगर हम जो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट एल्गोरिदम को देखें तो वी कैन सी दैट हाउ टू मैनेज अ केस ऑफ एक्रोमेगाली. अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडेनोमा है, that is the most common cause of acromegaly, then assess the likelihood of surgical cure. means सर्जरी करने से अगर पेशेंट को क्योर होने का चांस है, it is likely, then go ahead with the surgery. सर्जरी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन एलिवेटेड है, then somatostatin analog can be used. If it is controlled, then monitor the patient. Somatostatin analog use करने के बाद again you measure the growth hormone and insulin like growth factor 1 level. If it is controlled, then just monitor the patient. अगर surgery will not cure the patient, means cure by surgery is unlikely, then use somatostatin analog. Somatostatin analog use करने के बाद measure growth hormone and insulin like growth factor level. Okay? अगर insulin like growth factor level या फिर growth hormone is controlled, then just monitor the patient. If it is uncontrolled, then you do the following things. Increase dose or frequency of somatostatin analog. You may add growth hormone receptor antagonist, that is pegvisomant, और नहीं तो dopamine agonist like cabergoline यूज कर सकते हैं. ये सब यूज करने के बाद again you measure the growth hormone और insulin like growth factor 1 level. If it is controlled, then just do monitoring. Again, अगर ये अनकंट्रोल है तो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज पेगविसोमant यूज करो, नहीं तो रेडिएशन थेरेपी में बी यूज, और नहीं तो रीऑपरेशन. दीज आर द ऑप्शंस वी हैव इन केस ऑफ रिफ्रैक्टरी ग्रोथ हार्मोन एक्सेस. सो बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शन में अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? सर्जिकल ऑप्शन जो कि इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. देन मेडिकल ऑप्शन में हमारे पास है ऑक्ट्रियोटाइड, दैट इज somatostatin analog octreotide. Then we have pegvisomant, that is growth hormone receptor antagonist, and we have dopamine agonist, that is cabergoline. Okay. In refractory cases रेडिएशन कर सकते हैं और एल्स री-ऑपरेशन भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ अ पेशेंट ऑफ एक्रोमेगाली जो है, एक्रोमेगाली अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडेनोमा की वजह से है तो इस एल्गोरिदम के हिसाब से हम इजीली पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्रोमेगाली जो मैं इस क्लास में डिस्कस करना चाहती थी. थैंक यू सो मच.